Good morning. Honorable Admin Governor, Brigadier Dr. B.D. Misra, Chief Guest for the 30th Kisan Jawan Vigan Mela, and Mrs. Ilam Misra First Lady, Dr. Samir B. Kamath, Secretary Defense R&D and Chairman DRDO, and Mrs. Samir Kamath, Dr. Pawan Kotwal, Advisor to the Honorable Governor Rak UP, Major General Rabjit Singh Bakshi, Sena Medal, General Officer Commanding Headquarters, Leh Sub Area, senior officers from the Army, from the UT administration, Vice Chancellor of Adak University, Vice Chancellor of the CIBS, heads of the various government departments, research institutes, farmers, entrepreneurs, the students of the various schools, and media persons from the various channels. Jule, Namaskar, and good morning. To augment the ability of the fresh food item, covering the fresh vegetable, meal, fruit, meat, milk, through the technological intervention with the help of the UT administration, State Department, farmers and NGOs. So over the periods we have achieved a lot. In earlier days, when you talk about the 30-year, 40-year back, only a few vegetables used to be grown. Nowadays, with the technological intervention, with the support of the Hill Council and the UT administration departments, almost all temperate crops, besides the growing the temperate crop, all summer crops like watermelon, muskmelon, capsicum, alert capsicum, variety of vegetables, and variety of temperate fruits. Besides growing the fruits of the apricot, we are having the world-based apricot, then apples. Besides that, world-based cherry, plum, peach, pear, all fruits can be grown with high yield in Kabji. So we did the study, and we are in the connection with the UT administration for its adoption by the farmers. And similarly, at present there is a glut of vegetable in summer. So our main problem now our troops and the society face the problem of the ability of fresh food item in the winter. What we have seen, and everyone is hated this one. So for that we are in the job, and recently with the help of the UT administration, we have developed a greenhouse technology that can be very much effective even in the peak winter when the temperature drops in minus 20, 25, 30. And UT administration has successfully काफी फ्रेश जो क्वालिटी ऑफ जो वेजिटेबल्स की नर्सरी हम लोग कॉलेज नर्सरी एवरी ईयर हम लोग करीब अप्रैल में करीब 25 लाख नंबर हम लोग फार्मर्स को देते हैं, और फार्मर्स को उनकी ले में सब चीज़ें जो ट्राई किया गया है वीडियो में ट्राई किया था। अभी में इसको आर्मी सम्मेलन हमने LAC अलाउड तारापुर ज्वालापुर और काफ़ी इसको अच्छा सक्सेस मिला है। हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कई बड़े स्तर पे लगाया है। अनेक डिस्कित संस्कृत पुनम डिस्कित तरुणम अनेक पिक्चर साले कौन बात करते हैं मेरा आपको सर एक बार सामने देखिए एक बार साथ में उसके बाद लफ्जम नमजान लफ्जम नमजान ने कम्युनिटी रुम्बक गांव के कम्युनिटी को मोबिलाइज करके एक बैरन लैंड को उन्होंने हरा भरा किया है। Seven thumbs stop. Tapi yo kalau kau tu kau bawa sekali dengan aku.
सेवंथ अंचल स्टॉक। इन्होंने स्टॉक गांव में बहुत मॉडर्न इरिगेशन के थ्रू फ्रूट ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया। उसके बाद रणबीरपुरा से फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए पल्दन दवा तीन प्रोजेक्ट को लगा सचिव प्रोजेक्ट चला। लैंड को उन्होंने हरा भरा किया है विद द फ्रूट ऑर्चर्ड। मोहम्मद जावेद को लगा दे सचिव प्रोजेक्ट इतना ये सीड प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ अन्य कई सारे वेजिटेबल्स अपने फार्म पे उगाते हैं। मोहम्मद जावेद उद्दीन सोनम डोलमस को दर्जा। मंच पर उपस्थित डॉक्टर समीर बी कामत, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D and Chairman DRDO, Major General Sarabjit Bakshi, Sena Medal, General Officer Commanding, Headquarters Leh Saveria, Dr. Pawan Kotwal, IAS Advisor to LG Ladakh, Sri Ravindra Kumar, IAS Secretary, Ladakh Administration, Dr. O.P. Chaurasia, Director, Bihar, officers from Defense Forces, ITBP, heads of various departments and NGOs, farmer, मीडिया के लोग, गांव के प्रतिनिधि और हमारे प्रिय बच्चे, जो इतने छोटे बच्चे आज यहाँ पर आके तिरंगा झंडा लेके खड़े थे, मैं उनको शाबाश देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उस पीढ़ी का सोल्जर हूँ जबकि ये सब चीज़ें फौज में नहीं थी। मेरा कमीशन 1961 में हुआ था, तो ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अब ये देख के हमको ताजुब लगता है कि शायद मैं स्टोन एज में था, अभी हम बड़े एडवांस स्टेज में आ गए। एक संस्कृत में श्लोक है और श्लोक यह है कि सुखाय दुखात अनुभूय सुखाय दुखात अनुभूय शोभते घनांधकारे शिवदीप दर्शनम सुखात यो याति नरो दरिद्रताम हृत शरीरे नृत सजीव। इसके माने यह है कि जब सुख मिलता है, अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, और वो अच्छी चीज़ें आती हैं जबकि वो अच्छी चीज़ें नहीं थी उस वक्त के बाद आती हैं, तो बड़ा सुख की अनुभूति होती है। जैसे अगर आप अंधेरे में हैं और एकाएक आपको दीपक दिखाई पड़ जाए और अंधेरा छट जाए तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर रिवर्स होता है कि आप बहुत अच्छी परिस्थिति में थे और बुरी परिस्थिति आ जाए तो शरीर तो रहेगी लेकिन जीविका की अनुभूति, जीवन की अनुभूति नहीं होती है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अनुभूति है कि मैं उस प्रिमिटिव एज में था जबकि सप्लाई दूर से आती थी और सप्लाई में क्या आता था उसमें बड़ी उस वक्त बहुत दिक्कत होती थी। ये डायरेक्ट आर्मी को ITBP को जाए तो हम लोगों ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्योंकि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ट्रुप्स को तो आपको मान लीजिए किसी एक दिन आपके पास सप्लाई नहीं है तो फौज वाला तो नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि उसने सुबह दोपहर शाम को खाना खाना है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, कोल्ड स्टोर दिए सब और सप्लाई शुरू हुई। तो उसमें फौज वाले वो भी खुश हैं और हमारे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होता है। फार्मर्स का फ़ायदा माने ये होता है डेवलपमेंट, बेसिकली डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर अच्छाई से हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं। उनके जो 5 प्रण अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसमें ये भी है कि हम अपनी मानसिकता को ठीक कर दें, हमारी पुरानी मानसिकता खत्म हो जाए, हम प्रोग्रेसिव मानसिकता लाएं और प्रोग्रेस करें। तो ये उनका जो एक ऐलान है, आह्वान है, ये भी बहुत अच्छा है और हम इसी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। मित्रों, आज हमने बहुत से आर्मी वालों को ट्रॉफी दिया, सर्टिफिकेट दिया और सबसे मैं पूछता रहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो सबने बताया कि भाई हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फल प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम अपने ट्रुप्स को जो आगे डिप्लॉयड है भेज रहे हैं। तो मैं आप लोगों के अंग्रेज़ों के टाइम की एक बात बताता हूँ, जो कि आज मैं उसको एक बहुत ही गुणवत्ता की दृष्टि से देखता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि नागासाकी हिरोशिमा पर 6 और 9 अगस्त को 1945 में जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुए थे तो जापानीज ने सरेंडर किया था। उसके बाद डीमोबिलाइजेशन हो गया, तो पूरी ट्रुप्स फैक्ट्री स्टेशन में आ गई बर्मा बॉर्डर से, क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारा 8 आर्मी में भी डिप्लॉयमेंट था, डिजर्ट में भी, एलन ग्रीन रिवर सैंगरोंग उस वार में भी था हमारे आर्मी का 8 आर्मी, तो सब आ गए। तो कुछ अंग्रेज जो अफसर थे, सीनियर अफसर, उनके फैक्ट्स बहुत हुआ करते थे। तो एक जनरल साहब थे अंग्रेज और एक राजपूत बटालियन में आए इंस्पेक्शन के लिए, तो उनका फैक्ट था किचन गार्डन, कि किचन गार्डन होना चाहिए। अब साहब, ये किचन गार्डन तो आपको ऑब्जाइव नहीं करेगा कि जब आपके इंस्पेक्शन हो रहे हैं तो बड़े बड़े वहाँ पर सब्जियाँ हो जाए। तो जॉन साहब आए और कमांडिंग ऑफिसर पूछा, वेयर इज योर किचन गार्डन? तो इसे सर कम आई शो यू। तो सूबेदार मेजर साहब थे, राजपूत के, बड़ी बड़ी मूछें और वो, तो उन्होंने कहा सुखरामन साहब चलिए। तो ले गया साहब, वहाँ पर कद्दू के वो लगे हुए थे, कद्दू का बगीचा था, माने क्रीपर थे कद्दू, उसमें बड़े बड़े कद्दू, और जॉन साहब बहुत खुश, वेरी गुड, वेल डन। तो हुआ क्या था कि सुखराम मेजर साहब बाजार गए और वहाँ से बड़े बड़े कद्दू लाए और लगा दिया, और इंस्पेक्शन वेंट अप वेरी वेल। जॉन साहब बहुत खुश थे। और उसके बाद लंच था, लंच में बियर था, और बियर तो कम चला, लेकिन चर्चा किचन गार्डन की पूरी चली। साहब वेरी वेल। तो लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो हमारा पूरा इंडिजिनाइजेशन हो रहा है। हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, पनडुब्बी बना रहे हैं, हम लाइट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो इंडिजिनाइजेशन है, जो कि किसान, जवान, विज्ञान, इनका इन्वेशन है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेंड है, ये एक वॉलंटरी ट्रेंड है, अकॉम्प्लिशमेंट ओरिएंटेड ट्रेंड है और जेन्युइन ट्रेंड है फॉर द डेवलपमेंट। दैट इज़ वेरी गुड। और इसके लिए मैं DRDO को, इनके जो इनिशिएटिव है, इसकी मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं जब आर्मी में था तब क्या था, अब क्या है, लेकिन उस वक्त बड़ा प्रिमिटिव था। 1964 में मेरी बटालियन नागालैंड में डिप्लॉयड थी और मैं 30 पोस्ट का कमांडर था। मैं जूनियर मेजर था, 5 साल की नौकरी, 6 साल। अब वो जो पोस्ट थी वो एयर मेंटेन थी, और वहाँ पर हेडक्वार्टर से, मेलूरी से, जो कि रोड हेड था, वहाँ से म्यूल ट्रैक आता था। अब म्यूल पर कुछ आ भी नहीं पाता था, तो फ्रेश वेजिटेबल कभी कभी आती थी, नहीं टेन। तो साहब वो सभी हमारे ट्रुप्स, हम लोग टेन वेजिटेबल खाते थे, और जब हम छुट्टी जाते थे तो हरियाली देख के हम कूद पड़ते थे कि भाई ये हरी सब्जी है, स्पिनाच है, ये है, वो है। लेकिन अब जो यहाँ हो रहा है, इट इज़ वेरी गुड। अब DRDO की और बिहार की जो काबिलियत है,
इसका मुझे पहला एहसास हुआ अगेन जब मैं गवर्नर था यहाँ अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर हमारा जो राजभवन था बहुत टीले पर था, वहाँ से कट आए और कट के बाद गांव वाले वो कट करके वो जो प्रेसिपिस थी उसको काट के एनक्रोच कर रहे थे। अब हमको यह था कि भाई ये काटते जाएंगे और पूरा काट के बाहर गिरेगा। तो मैंने डीसी से कहा कि एनक्रोचमेंट हटाओ, तो डीसी ने बड़ा प्रयास किया, एनक्रोचमेंट हटाया। तो मैंने सोचा मैं करूं क्या, क्योंकि गांव वाले अगर खाली रहेगा फिर घर बना लेंगे, हट बना लेंगे। तो मैंने वहाँ क्वार्टर्स बनाए जो हमारे सबसे गरीब तबके के वर्कर थे। उनको मैंने कहा कि भाई बिजली तुम्हारा और बाकी हमारा। तो हमने उनके लिए क्वार्टर बना दिए, उनके लिए टॉयलेट बना दिए, काफ़ी बना दिए। अब प्रॉब्लम ये था कि हम टॉयलेट का डिस्पोजल और जो पानी उनका ये नहाने का और सब पानी उसका क्या करें, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे वहाँ वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने कहा था DRDO को बताओ वो कर देंगे। तो मेरा DRDO का कॉन्सेप्ट था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं आप वाइस चांसलर साहब, ये क्या करने नहीं साहब। तो वहाँ पर ये लोग इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है तेजपुर में ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड को मैंने बुलाया। मैंने कहा भाई ये समस्या है, मैं जानता हूँ कि आप इसके कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे। बोले नहीं साहब हम ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि हाई एल्टीट्यूड की जितनी रिक्वायरमेंट है ट्रूप्स की वी आर केटरिंग फॉर दैट एंड दिस वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। और साहब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो सिस्टम अब भी चल रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इनका काम है प्रेज़वर्दी। तो जब मैं यहाँ पर आया 19 फरवरी को 2023 में, तो मैंने DRDO को जो हमारे हेड हैं ये चौरसिया साहब, उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए साहब आप कुछ ऐसा करो कि हमारे किसानों को फ़ायदा हो और जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करें वो उसका मार्केट भी हो और लोगों को उससे करने में उनको उत्साह हो। मैंने 24 प्रोग्राम चलाए। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे सेक्रेटरी साहब ये रविंद्र कुमार साहब, इन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें जो जन भागीदारी है, इम्पॉर्टेंट क्या, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारा आवाम है, उनको फायदा और उनको डायरेक्ट फायदा। तो जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं उससे उनको भी फायदा हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि DRDO पैक एनिमल डेवलप करें। तो अभी इनको 24 लेवल का डबल हम कैमल का इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी Yes, sir. अपनी 60s में वो 5 वेजिटेबल्स and we go जिनका उसको प्रपोज उसको 8 वेजिटेबल्स ग्रो इसमें 8 वेजिटेबल्स कमर्शियली ग्रो होते हैं। आर्मी को भी 28 टाइप adopted और commercial